on this day, which is the 25th of June in the year 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi declared a nationwide emergency. Democratic rights and freedoms were suspended, opposition leaders were jailed, and press freedom was severely curtailed. For 21 months, people in the world's largest democracy did not have any rights. The trigger was a verdict by the Allahabad High Court that found Indira Gandhi guilty of electoral malpractice, and it proceeded to invalidate her 1971 election victory. Emergency was declared under Article 352 of the Indian Constitution, citing threats to national security. Now, since the year 2024, this day is being observed as the Samvidhan Hatya Divas by the Bharatiya Janata Party. Now, this year also marks 51 years since the declaration of the emergency, like we said, and Prime Minister Modi has described the emergency period, which lasted almost 19 months, as one of the darkest chapters in India's history. He paid tribute to the defenders of democracy who fought to protect the country's democratic values and, of course, the values enshrined in the Indian Constitution. Here's what the Prime Minister has said: that the emergency was one of the darkest chapters in India's independent history, that the emergency was a direct assault on the Constitution of India, that it witnessed the suspension of civil liberties, and that there were curbs on freedom of expression, including the press. Political leaders, journalists were apprehended by the then dispensation. It also revealed courage of countless citizens who fought against that oppressive period of 19 months. But this year, on the 51st anniversary of the emergency, a political firestorm has now erupted over a section on the emergency period that's now been included on the part of the NCERT in the Class 9 Social Science textbook. Yes, students will now get to study about what happened during the emergency era much earlier in their academic journey. And this has, of course, led to a war of words. Now, this shift in the way that modern Indian political history will be taught at the secondary school level has triggered a political firestorm. Let's also tell you how the opposition has now decided to respond. The Congress says that the current government is misusing institutions. The NCP Sharad Pawar faction says that netas say that it is sad that politics is being brought into teaching and learning today. Let's listen in to what the ranks of the opposition have been saying. देखिए, इतिहास को अपने तरीके से आप देख सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि हमें आगे देखना पड़ेगा। और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली। जिस प्रकार दुरुपयोग कर आवाज को दबाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, निर्वाचन आयोग, कोई संस्था हो, जिस तरह का दुरुपयोग कर अपने हितों को साधने की कोशिश ये सरकार कर रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। Will we have to remind NCERT of the contributions during freedom struggle now? If this is the pattern it is going, the sooner or later will Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abul Kalam Azad, Indira Gandhi, will they all vanish? The current ruling party never had any contribution, no. So just to give the feel that it is not Congress, will they change the history to that extent also is something to be looked into. Now, let's in fact take you through what exactly is now going to be taught to students of Class 9 who are part of the NCERT syllabus. So this particular chapter on the emergency has been introduced in the Class 9 Social Science textbook. It's also the first time ever that Class 9 students will be studying about the emergency. We have some more details now coming in. Ravi Shankar Prasad of the Bharatiya Janata Party is holding a press conference. लेकिन आज मैं 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को और आपके माध्यम से देश को बताना चाहूंगा कि सारे संवैधानिक जो संस्थान हैं उसको किस तरह से अब्यूज किया गया। टुडे इज द टाइम टू रिकॉल as to how, while imposing emergency, all the signposts of democracy, the institutions, were brutalized by the then Congress government headed by Indira Gandhi.
आपको मालूम है कि इमरजेंसी लगाने का जो प्रस्ताव था उस पर कैबिनेट की सहमति नहीं थी। रात के अंधेरे में फखरुद्दीन रही अहमद तत्काल राष्ट्रपति से दबाव देकर साइन कराया गया और सुबह 6 बजे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। उसके बाद सभी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, आरएसएस पर बैन लगा। क्या जेपी, क्या मोरारजी भाई, क्या अटल जी, क्या आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस तो संघर्ष कर रहे थे, मधु दंडवते, ये सभी गिरफ्तार हुए। मित्रों, जेल में जो तांडव हुआ है उसकी कहानी बहुत आई है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जेपी को गिरफ्तार करके रखा गया था हरियाणा में एक गेस्ट हाउस में। तो जेपी सुबह में जलपान कर रहे थे तो देखे सामने मोरारजी भाई टहल रहे हैं, उनको ऊपर रखा गया था। जेपी ने कहा मुझे उनसे मिलने दो, कहा आप नहीं मिल सकते। कहा ऐसा करो हम लोग को साथ नाश्ता करें दो, कहा आप नहीं कर सकते। ऐसा करो हम दोनों जलपान करेंगे तो हम लोग के बीच में बैठ जाना, कहा नो। आप समझ सकते हैं कि जेपी मीसा में बंद हैं, हमें मोरारजी भाई हैं, आप मिल नहीं सकते। अटल जी, आडवाणी जी बेंगलोर जेल में गिरफ्तार हुए। मित्रों, जिस तरह से जेल में अत्याचार किया गया उस पर कई पत्रकारों ने किताबें लिखी हैं। विशेष रूप से मैं कूमी कपूर की किताब का उल्लेख करना चाहूंगा, जो दिल्ली में खुराफात हुई। और उस समय दिल्ली में एक एसडीएम होते थे नवीन चावला, जिनको पुरस्कार में बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। उनको निर्देश था कि सबों को टिन के शेड वाले सेल में रखो ताकि गर्मी से परेशान हो और टूटे। यही देश भर में चला। बिहार में थोड़ी हालत बेटर थी क्योंकि हम लोग पहले से संघर्ष कर रहे थे, तो थोड़ा उन्होंने देखा था, हम लोग की बहुत पिटाई हुई थी। मित्रों, मानवता को शर्मसार करने वाली इतनी घटनाएं हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। ये बात मैं पूरी जीवमानी से कह रहा हूं। नसबंदी दिल्ली में जो हुई, आप सभी पत्रकार पढ़े होंगे। तेरे को पेंशन चाहिए, नसबंदी का कैंडिडेट ला। तेरे को प्रमोशन चाहिए, नसबंदी का कैंडिडेट ला। पूरे देश में अब आप समझ सकते हैं कि जिसकी शादी भी नहीं हुई है उसको भी जबरदस्ती नसबंदी, क्योंकि सीएम को भी था कि जितना नसबंदी का सर्टिफिकेट दोगे संजय गांधी की नजरों में उतना ऊपर जाओगे। तो ये मैंने आपको बताया ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ क्या हमला। अब मैं आता हूं प्रेस के खिलाफ। दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर मार्ग है ना, यहां पर सभी अखबारों के कार्यालय है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, बाकी है। इन सबों की बिजली काट दी गई थी 24 के रात में ताकि अखबार नहीं निकले। और यह हाल था, लोग पूछ रहे हैं कि कुछ नहीं छपेगा। कई अखबारों ने अपना ब्लैंक संपादकीय लिखा। आपको मालूम है कुलदीप नायर की गिरफ्तारी हो गई थी मीसा में। बड़े संपादक थे, बंद कर दिए गए। जेपी के पक्ष में लिखते थे। बाकी कई बड़े पत्रकार, मैं क्या नाम लूं, एस निहाल सिंह हो या बाकी हो, इन सबों ने कहा वी विल नॉट राइट आवर एडिटोरियल्स। इतना अत्याचार किया गया। और आज जो लोग मीडिया पर हमला करने की बात करते हैं, बिका हुआ मीडिया है। उस समय इमरजेंसी में देखें, उनका एक चीफ सेंसर ऑफिसर था, बिना उसके अप्रूवल के कोई समाचार नहीं छपेगा। और संजय गांधी की देश भर में यात्रा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा। ये बात शाह कमीशन की रिपोर्ट में सब आई है। और बाकी तारीफ करने वाले तो लोग थे ही। आडवाणी जी ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा था, सम जर्नलिस्ट व्हेन दे वर कॉल्ड टू बेंड they prefer to crawl.
कुछ जर्नलिस्ट से जो झुकने को कहा गया तो वो दंडवत करने को तैयार थे। ये सच्चाई है। बहुत से वेल नोन नेम है, नाम क्या मालूम, कुछ न्यूज़पेपर्स थे, उसमें भी कई लोगों ने हिम्मत दिखाई। मुझे याद है कि छात्र संघर्ष नाम का एक हम लोग अंडरग्राउंड पेपर निकालते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मुझे सौभाग्य मिला था। अंडरग्राउंड में काफी एक्टिव था। आपको मालूम है जेपी की किडनी खराब हो गई थी, वो मुंबई के जसलोक अस्पताल में थे, 26वें फ्लोर पर। तो कहा गया इनको थोड़ा धूप चाहिए, मना कर दिया गया। धूप में बैठेंगे तो नीचे मुंबई की जनता देखेगी तो उनको वेव करेगी। बाद में आज वो मर गए, सोली सोराब जी, मैं उनका अभिनंदन करूंगा। उनका आई एम गोइंग टू मूव द बॉम्बे हाई कोर्ट। तब उनको 1 घंटा बैठने की अनुमति दी गई, उनकी किडनी खराब हो गई थी। जब वो मरने वाले थे तो उनको छोड़ा गया। हम अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस को देख रहे थे। आज कई चीजें बड़ी भावुकता से याद आ रही हैं। तो पटना से जो परिचित है उनको याद होगा, पटना में दरभंगा हाउस में हम लोग का एमए का क्लास चलता था। हम लोग तो सब लोग भागे हुए थे, क्या क्लास वास करना, गिरफ्तारी, सब पढ़ाई लिखाई सब तो अपनी जगह थी। तो हमने कहा जेपी को वहां एक बहुत फेमस काली का मंदिर है, तो जेपी को दर्शन के लिए बुलाएंगे, क्योंकि कांग्रेसियों ने कहा था जेपी पागल हो गए। तो जेपी आए, देख करके पूरी स्टूडेंट दौड़ पड़े, तो उन्हें पुजारी को गिरफ्तार कर लिया जिसने उनको माला पहनाया था। और बाद में जो किया सो किया ही आपको मालूम है। तो क्या नसबंदी, क्या नेताओं के साथ अत्याचार, क्या संघ के स्वयंसेवकों के साथ अत्याचार, क्या मीडिया के साथ अत्याचार। पांचजन्य, मदरलैंड, ऑर्गेनाइजर, इंडियन एक्सप्रेस, मैं नाम ले रहा हूं, दे शोड ग्रेट फाइट ऑफ रेसिस्टेंस। अब थोड़ा मैं पॉलिटिकल बातें करना चाहता हूं। आजकल इनके पुत्र लोग जो हैं तो उनको स्मरण दिलाना जरूरी है। लालू जी भी जेल में थे, मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे, अखिलेश बाबू, हाँ। और डीएमके के मित्रों, आपको बताना जरूरी है कि आपकी करुणानिधि की सरकार को इंदिरा जी ने डिसमिस कर दिया था, हाँ। तो देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में आया मीडिया, ह्यूमन डिग्निटी। अब मैं आता हूं पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट की अवधि को 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया। और जब अपोजिशन के लोग जेल में थे तब संविधान का 42वां संशोधन पारित किया गया। और संजय बाबू, ये जो सेकुलरिज्म की बात होती है ना, उसी समय लाया गया था और सोशलिज्म प्रियम्बल में। तो सेकुलरिज्म की बात करने वालों को मालूम है ना चाहिए कि विपक्षी जब जेल में थे तो ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, पीएम के खिलाफ कोई केस नहीं होगा। और रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को बदल दिया गया ताकि पीएम के इलेक्शन को चाय नहीं हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चूंकि ये अमेंडमेंट है तो वी कैन नॉट इंटरफेयर। तो संसद के साथ जो बदसलूकी की गई, 5 साल का 6 साल, विपक्ष जेल में, मनमानी तरीके से कानून बन रहा है और संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। What I am saying, all the shades of democracy were murdered during emergency. सारे संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की गई उस समय। जरा मैं जुडिशरी पर बोलना चाहता हूं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने हिम्मत दिखाई कि नहीं, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो हम इंटरफेयर करेंगे। हम लोग को तो इमरजेंसी के पहले ही बंद किया गया था। मैं एडवाइजरी बोर्ड में कमर में रस्सा लगा के गया था पटना हाई कोर्ट में। जज साहब से कहा मैं बहस करूंगा, मैं तैयारी करके गया था। और उसकी एक बहुत रोचक कहानी है कि जजेस ने देखा मेरे पिताजी का नाम तो उनको फोन किया कि आपका बेटा आया था, अच्छा बहस किया था। तो कहा आप छोड़ रहे हैं कि नहीं? कहा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे मुझे 2 साल के लिए कंफर्म कर दिया एडवाइजरी बोर्ड ने। बाद में रिट में हम लोग छूटे। इन फैसलों के खिलाफ
भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला ये केस है, और जब बहस हो रही थी तो वहां पर जजेस ने उस समय के अटॉर्नी जनरल नीरंडे से पूछा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, if a detainee is killed inside the prison, does he have any relief during emergency or not? मिस्टर एजी, अगर किसी डिटेन्यू को मार दिया गया जेल में तो उसको कोई राहत मिल सकती है? उनका नो मिलॉर्ड, ऑल द एवेन्यूज आर क्लोज्ड। और आज मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस आर्गुमेंट को सही माना। कि उम्मीद करते हैं it was a day of great shame for the judiciary of India when they buckled before that atrocious government imposing emergency. एक जज ने हिम्मत दिखाई थी, ने डिसेंट दिया कि नहीं, इमरजेंसी में भी मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार का सम्मान होगा, उसका अतिक्रमण होगा तो हम इंटरफेयर करेंगे। उस बहादुर जज का नाम था एचआर खन्ना, और उनको इन्होंने सुपरसीड कर दिया। सिर्फ 40 दिन के लिए वो चीफ जस्टिस बनते, सिर्फ 40 दिन के लिए। लेकिन ये इतनी बेशर्म सरकार थी कि उनको सुपरसीड कर दिया, क्योंकि उन्होंने नागरिक के अधिकारों की बात की थी। मुझे भी याद है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन पर एक संपादकीय लिखा था, ब्रेव इंडियंस, इफ डेमोक्रेसी रिटर्न्स टू इंडिया, प्लीज हैंग द पोर्ट्रेट ऑफ दिस पावरफुल जज इन द सुप्रीम कोर्ट। उसको हमने कई जगह बांटा था फोटो कॉपी। आज उनकी तस्वीर कोर्ट नंबर 2 में लगी हुई है। So that was Mr. Ravi Shankar Prasad addressing the press on the 51st anniversary of the emergency, one of the darkest chapters in India's history. We'll take a short break. We'll come back with more on the other side.